Good morning. I Good am afternoon. Saurabh Sharma. Today we are continuing our math class. This is the class of from the school Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. We will continue our math class of class 9. The chapter is cube and we were talking about the cube and cuboid, and today we will discuss about the volume of the cube. And we had already completed the exercise number 13.1, and we will now continue the exercise number 13.5. Okay, so in 13.5, before proceeding to the 13.5, first of all make sure that you all are well known with the formulas of volume of cube at surface area and total surface area, whatever it is. Okay, so in the chapter cube and cuboid, okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इसको एक बार लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एस। बेसिकली जो हमारा क्यूब होता है इसमें सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर सेम, दैट्स व्हाई इट्स टोटल वॉल्यूम इज एस क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया अगर आप लोग को याद हो, if you are well known with it, then total surface area is 6 times of s square. There are 6 spaces, therefore 6 times of s square. And second, volume of cuboid. Volume of cuboid. Volume of cuboid is equal to volume of cuboid. Sir, L into B into H. L, B, and H. So volume of cuboid is L into B into H. H. And total surface area. Total surface area was 2 times of L into H plus H into L. ओके, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.5 पे प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन, अगर आप में से किसी ने अगर अपनी बुक नहीं ओपन की तो सब लोग अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, पहली चीज, ठीक है, अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और उसमें एक्सरसाइज नंबर 13.5 को देखिए। 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर and 22.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of the packet contain 12 such boxes? Let me explain the question. एक मैच बॉक्स है, उसकी साइड्स की वैल्यू दे दी है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों। मैच बॉक्स एक जो माचिस का डिब्बी है उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे दी गई है, और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, किसी एक डिब्बी का वॉल्यूम क्या होगा, और अगर ऐसे 12 बॉक्सेस लेते हैं तो उनका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लोग एक का वॉल्यूम निकाल देंगे और 12 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 13.5 एक्सरसाइज, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अ मैच बॉक्स विद द साइड्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा अपनी बुक में, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5। 4 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर and here it is 2.5 centimeter and it is 1.5 centimeter. Okay, this is the given conditions. Okay, so we will consider this one is our nothing but a length, this is our breadth, and this is height. So what is the volume of one such? Volume of one match box. One match box is equal to, multiply इन तीनों को कर देंगे 4 into 2.5, 2.5 को आप 4 टाइम्स करेंगे तो आएगा 10, and 10 into 1.5 is 15। 4 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर
इंटू 1.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाइए, ठीक है। 10 and 25 for the 100, okay, 100 into 100 into 15, 100 into 15, 1500 centimeter divided by 100, that is equal to 15 centimeter. This is our 15. This is our 15 centimeter हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 15 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम है। यूनिट का ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा। 15 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आएगा। अब जब आपका एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ चुका है तो आपको पूछा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस, सो वी विल सॉल्व इट। वॉल्यूम ऑफ 12 match box is equal to 12 times of 15 centimeter, okay, centimeter cube, 15 times the 150, 15 to the 30, therefore 150 plus 30 180 centimeter cube। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप। एंड ये बेसिक सा क्वेश्चन था, एक सैंपल के तौर पे हम लोग ने लगाया है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको समझ लीजिए, ये आप लोग होमवर्क में आप घर पे ये सब आप लोग ट्राई करिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक is 6 meter, a cuboidal water tank is 6 meter and a cuboidal water tank is 6 meter long and 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? Okay, a cuboidal water tank is 6 meter long and 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liter of water can it hold? हमें एक cuboidal tank है, cuboidal tank आप समझिएगा। ध्यान दीजिए, क्यूबॉइडल वाटर टैंक, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक को आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। क्यूबॉइडल वाटर टैंक में आपका 6 मीटर लॉन्ग टू 5 मीटर वाइड, 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर, इसकी जो डेप्थ है वो हाइट की तरह काम करेगी, 4.5 मीटर वाइड, ओके। वन 4.5 मीटर वाइड, ये इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है, ठीक है। हमें हाउ मेनी लीटर वाटर कैन इट होल्ड, ये पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। एंड एक चीज और इसमें लिखा है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब। इसमें एक आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं 13.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें ये बात दी गई है कि 6 मीटर हाइट, 6 मीटर लेंथ है, 5 मीटर वाइडनेस है एंड 4.5 मीटर इसकी डेप्थ। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक कंडीशन आपके ब्रैकेट में दी गई है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम लोग इसका टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ cuboid is equal to 6 meter into 5 meter into 4.5 meter, okay। अब ध्यान दीजिए 6 and 6 5 30
30 मीटर स्क्वायर इंटू 4.5। 4.5 का आप राइज कर दीजिए, ये हो जाएगा 13.5। 13.5 इंटू 10 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 135 मीटर। सर क्या हुआ? सर दिख रहा नहीं है। दिख रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। 135 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। जब इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये बोला है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 इंटू 1000 लीटर। दिस इज इक्वल टू 135 लीटर। तो यही है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें यही कहा गया है कि आपका एक वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया गया है और इसमें 135 इंटू 1000 करेंगे। ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबॉइड का, और बोला है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होंगे। तो 135 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 135 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अ क्यूबॉइडल वेसल ऑफ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 मीटर क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाएंगे, और बिफोर दैट मैं इसे एक्सप्लेन जरूर कर रहा हूँ। देखिए एक क्यूबॉइडल वेसल है, वेसल यानी एक कंटेनर है, उसका शेप क्यूबॉइडल है। ठीक है। उस क्यूबॉइडल कंटेनर में 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी गई है। ठीक है। हाउ मच हाई, तो लेंथ और ब्रेड्थ दे दी है, हाइट नहीं दिया है। ठीक है, हाइट आपको पता करनी है। जबकि उसका वॉल्यूम 380 क्यूबिक मीटर, 380 क्यूबिक मीटर का मतलब समझिएगा 380 क्यूबिक मीटर। 380 क्यूबिक मीटर का मतलब यही है कि मीटर क्यूब, यही 380 मीटर क्यूब। ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो 380 मीटर क्यूबिक का मतलब यही है। तो आपको लेंथ दे दी गई है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल, इसकी यही हाइट हमें पता करनी है। ठीक है, ये हाइट को पता करना है। लेंथ इसकी दे दी गई है 10 एंड वाइडनेस इसकी 8। ठीक है, मीटर ये चीज दिया गया है। तो अब हम इसमें वही वॉल्यूम लगाएंगे। वॉल्यूम इज इक्वल सौरभ टू, सर, यस क्या हुआ? बागीशा की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। हम्म, बागीशा कनेक्ट नहीं हो पा रही है, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। कनेक्ट करो उसे, वो ये बोल रही आ है रहा है मुझे कि बार बार नहीं? में। डिस्प्ले आ रहा है ना? सर बागीशा की कनेक्ट नहीं हो रही है, वो बार बार में मुझे फोन करके बोल रही है। उसको बोलिए लिंक पे दोबारा क्लिक करें। वो कर रही है बट उसकी हो नहीं रही। लिंक पर सर मेरा भी नहीं हो रहा था, मैंने तो ब्राउजर से किया। हाँ, तो एक बार सभी पहले मेरा ब्राउजर भी से ट्राई करें। आपको अपने फ्रेंड्स को एक मैसेज डाल दें कि ब्राउजर से ट्राई करें। फिर मैं अगली क्लास में इसे देखता हूँ। अगली क्लास में, क्योंकि मुझे इसका ये सिस्टम से कनेक्टेड है, उसका मुझे आइडिया तो अभी है नहीं। मैं इसे कंसल्ट करके आपको बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर भी। इसके बाद तो देखिए L इंटू B इंटू H दिया गया है। ठीक है ना, L इंटू B। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, बुक में 13.5 का क्वेश्चन नंबर 3 में कि a cuboidal vessel 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड है, हमें उसकी हाइट पता करनी है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम 380 क्यूबिक मीटर दिया है, इसका वॉल्यूम दे दिया है। तो इसको और तो 380 मीटर क्यूबिक बोल दिया आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू B देते हैं हम लोग को। वॉल्यूम की वैल्यू दे दिया, L दे दिया, B दे दिया। इसका पता करना है। आप लोग जानते हैं इसको ऐसे करना है। ठीक है ना, तो
तो जब आप वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और 1 एंड मैंने करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइड ट्री 2 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर, रुपीज 30 पर मीटर क्यूब। देखो क्या बोला है, हमें किसी जमीन पे डिगिंग मतलब इकट्ठा करना है, खुदाई करनी है, तो उसमें यही बोला है कि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट देखिए, क्वेश्चन पर वो देखिएगा सब। कॉस्ट ऑफ डिगिंग और कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइडल पे 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। यही ऐसा फिगर है क्यूबॉइडल 8 मीटर लॉन्ग, डायमेंशन को देखिए 8 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वाइड एंड इसकी हाइट दे दी गई है 6 मीटर हाइट एंड 3 मीटर डीप, 3 मीटर इसकी डेप्थ दी गई है। इस बात को इस तरह समझिएगा कि हम लोग किसी सरफेस पे हमें उससे कहीं खुदाई करनी है, क्यूबॉइड शेप बनाना है, तो 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड है, 3 मीटर डीप होगा, ठीक है। 3 मीटर डीप होगा, तो आप इसमें पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम निकलते ही इसका इस वॉल्यूम में आप कॉस्ट दिया है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब के हिसाब से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 30 रुपीज पर मीटर क्यूब का लगेगा, तो टोटल वॉल्यूम का कितना लगेगा वही चीज करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू L into B into H, L into B into H, volume is equal to L into B into H, 8 meter into 6 meter into 3 meter, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, यहाँ पर समझ आ रहा है L into B into H। अब आप 8, 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 जा 48, 48 का प्राइस कर देंगे, 48 का प्राइस करके आएगा 144 मीटर क्यूब, ठीक है। 144 मीटर क्यूब, ये आपका आ गया वॉल्यूम। और ये चीज दिया गया है फॉर रेट ऑफ 30 पर मीटर, जो आपका डिगिंग मतलब आप जैसे कि जो भी लेबर है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से करता है, तो वॉल्यूम 144 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना होगा? द कॉस्ट ऑफ 144 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 144 मीटर क्यूब इनटू 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से ऐसे हो जाएगा 144 का प्राइस कर देंगे आप, तो हो जाएगा 250 एंड 300 एज 450 में 18 का 450 में 18 कम कर देंगे, आपका हो जाएगा 432 रुपीज, ये कॉस्ट लगेगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ तक आपको को आवाज आ रही है नहीं? यस सर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 एंड 10 मीटर। ये भी क्वेश्चन इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में लेंथ और ब्रेथ दिया था, हाइट हमें बताना था। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें वॉल्यूम दिया है और आपको ब्रेथ एंड इसका लेंथ एंड डेप्थ आपको इसकी ब्रेथ को पता करना है। आप यही पता रखेंगे
आइडियली आपको इसकी ब्रेथ पता करनी है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है, लेंथ ऑफ टैंक इज 50,000 लीटर्स, 50,000 लीटर, ठीक है, 50,000 लीटर एंड 50,000 लीटर एंड फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, length and depth are respectively 2.5 and 10. 2.5 meter into d into 10 मीटर। एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये दोनों मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये लीटर है। हम लोग पहले इस मीटर को मीटर बनाएंगे तभी इस क्वेश्चन से आगे प्रोसेस करके डील कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और ये सॉल्यूशन सही नहीं होगा। तो देखिए 1 हमने अभी भी रिलेशन पढ़ा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो इसी रिलेशन से अगर क्यों ना हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें कि 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, कोई प्रॉब्लम देखिएगा इसमें ना सर। कैसे हुआ, देखिए 1000 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, 1000 इधर शिफ्ट हो गया, आप 1000 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तभी ये रिलेशन आ सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आपको 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, या 50,000 लीटर इज इक्वल टू दोनों 50,000 से मल्टीप्लाई करें, 50,000 फॉर 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 50,000 into 1 लीटर, ठीक है। मैंने इस रिलेशन में दोनों साइड 50,000 से मल्टीप्लाई किया, इनमें से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे इससे, यानी कि 50 लीटर क्यूब, और ये 50,000 लीटर किसके बराबर है, 50,000 into 1 50,000 लीटर, तो 50,000 लीटर इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब, तो ये किसके बराबर है, 50 मीटर क्यूब के, और 2.5 मीटर 2.5 को इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना, तो और मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो आप 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, इनटू डी, अब डी की वैल्यू निकाल दीजिए, इस डी की वैल्यू निकाल दीजिए 50 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 20 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा सिंबल, और 25 से 50 जाएगा, तो यानी कि b की वैल्यू क्या आई 2 मीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर था 5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो चैट कर भेज दीजिएगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ध्यान दीजिए, a village having a population of 4,000 requires a 150 liters of water per head per day. If it has a tank measure, it has a tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. For how many days will the water of this tank last? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन है 4,000 और पर पर्सन दिस रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड, यानी कि पर पर्सन को 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, और 4,000 लोग हैं उस गांव में, तो टोटल रिक्वायरमेंट 4,000 into 150 हो जाएगा इसका, ठीक है। एंड इसके बाद क्या बोल रहा है कि इट हैज अ टैंक, एक टैंक जो है वो 20 मीटर 15 मीटर और 6 मीटर का है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे दी है 20 मीटर 15 मीटर एंड 6 मीटर, इसकी लेंथ ब्रेड्थ एक टैंक दे दिया है, ये वाटर शेप का एरिया है, 20 मीटर 15 6 मीटर, 20 15 एंड 6 मीटर, ये आपका क्यूबॉइडल टैंक है, ठीक है। आपको ये पूछा है कि ये जो पानी होगा, अगर इस टैंक में जो भी पानी आएगा, फाइंड हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, ये पानी कितना दिन चलेगा,
देखिए अगर ये पानी आपको ये पता चल जाए कि इस टैंक में कितना पानी आएगा पहली चीज, और दूसरी चीज आपको ये पता चल जाएगी कि एक जो विलेज है उसमें पर डे की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस टैंक में कितना पानी आएगा और पर डे की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर टोटल जो वॉल्यूम आएगा उसको अगर हम पर डे से डिवाइड कर देंगे पर डे में कितनी रिक्वायरमेंट है तो आपको पता चल जाएगा। इसको और इजी वे में इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि आप डेली के 1 लीटर एक वाटर बॉटल एक बिस्लरी बॉटल यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप डेली की एक बिस्लरी बॉटल यूज करते हैं आपको पता है, और आपके पास एक वाटर गैलन है बड़ा सा, उसमें 100 बिस्लरी की बॉटल आती है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका वो वाटर गैलन कितने दिन चलेगा। आप 100 बिस्लरी की बॉटल अगर उसमें आती तो 100 डेज चलेगा, क्योंकि एक बॉटल एक दिन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है ये पता कर लीजिए, और आपका टैंक कितना बड़ा है ये पता कर लीजिए। तो एक दिन की रिक्वायरमेंट से आप उस टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस एक दिन के कितने सेक्शंस आएंगे उस वॉल्यूम में, फिर आपको पता चलेगा कि कितने डेज हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ और कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। अब विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है विलेज की, पॉपुलेशन पॉपुलेशन है इसकी पॉपुलेशन है इस विलेज की 4000, क्वेश्चन नंबर 6 है ये 4000 पॉपुलेशन, population is equal to 4000 of the given village and इसके बाद आपको दिया गया है कि 150 liters of water is needed for each person, 150 liters of water needed for each person, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 150 लीटर्स ऑफ वाटर नीडेड फॉर ईच पर्सन, 150 लीटर ऑफ वाटर चाहिए हर एक पर्सन के लिए। इसके बाद इसे इस तरह समझिएगा कि टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर एक आदमी 150 लीटर की रिक्वायरमेंट है और ऐसे 4000 लोग हैं तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, so in a village number of total requirement of water per day is equal to 150 into 4000 लीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इसे सॉल्व करिए, 15 4 60 1 2 3 4 लीटर, ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट कि उस गांव में डेली कितना लीटर पानी चाहिए उस गांव में ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपका हाउ मेनी लीटर्स वाटर आ गया, अब वाटर पर डे ये निकल आया। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि कितना ज्यादा देंगे वाटर, अगर आपका जो वाटर टैंक है गांव में जिसका लाइन आइडिया है इसका कितना वो कितने दिन चलेगा, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट, ठीक है, इजी है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक
volume of tank is equal to 20 meter into 15 meter into 6 meter. This is equal to 15 into 2, 30 and 3 6 are 18. ठीक है, 15 into 2 30 का 10 and 30 and 6 and this is 18 180 15 to the 30 and 6 18 and 80 इसका ठीक है मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, सो व्हाट इज द 1800 meter cube is equal to 1800 multiplied by 1000 meter cube। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1800 मीटर क्यूब। तो लीटर आएगा ना? यहाँ पर लीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता चल गया कि इतने मीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम होता है। यहाँ पर तो पता चल गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर in tank is equal to 18 लीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ये 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर की कंडीशन दिखाना है। नीचे अगर आपको डाउट लग रहा है कहाँ से लिखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में से ही है। 13.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी में से लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिए। तो हमारा ये आ गया कि वो टैंक में कितना पानी आएगा और एक दिन में कितना पानी चाहिए। ठीक है, एक दिन में इतना पानी चाहिए, ये पर डे के लिए है। ध्यान रखिए, वाटर रिक्वायर्ड पर डे उसका है, और ये टैंक में कितना पानी आएगा। तो आपको ये पता है कि आपको एक दिन में एक बॉटल पानी चाहिए और आपको एक गैलन में बता दिया जाए कि आपके पास कितना पानी है, तो आप यही कैलकुलेट करेंगे कि कितना कितने दिन गैलन चलेगा। so tank will last, tank मतलब कितने दिन चलेगा, tank will last is equal to amount of water in a tank, amount of water in tank, amount of water in tank divided by amount of water needed per day, amount of water needed per day। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड पर डे। तो देखिए अमाउंट ऑफ वाटर टैंक दिया है, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड पर डे ये रहा। ठीक है, इसे सॉल्व करना है, मैं ऊपर का इरेज करता सॉल्व कर रहा हूँ। टैंक लास्ट इक्वल टू 60,000 लीटर, ये पर डे के लिए है ना। अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक, सॉरी ये लिखना क्या है, फाइव जीरो से 5 में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एंड 6 से 18 ठीक है ना, ये लीटर है पर डे का।
और ये है लीटर और ये है लीटर पर डे। ठीक है, तो लीटर से लीटर कैंसिल करके डे से यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो 3 days। हाउ मेनी डेज वाटर विल लास्ट? 3 days। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर लगाइएगा, आपको एक बार के समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ सॉलिड ट्यूब ऑफ अ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू अ 8 ट्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द न्यू ट्यूब एंड आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपके ये दो तीन क्वेश्चन जितने भी हैं आपके बहुत इंटरेस्टिंग है, लगाइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 7 तक हम लोग डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 7 6 का सॉरी, एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग 8 और 9 कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ गोडाउन मेजर अ 40 मीटर 25 मीटर एंड 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ wooden cracks each measuring 1.5 meter and 1.5 meter and 0.5 meter that can be stored in a गोडाउन। ठीक है, हमारा ये क्यूबॉइड दिया है, इसमें इसके गोडाउन की बात हो रही है कि ये क्यूबॉइड गोडाउन जो होता है जैसे क्या होता है ना, हम लोग जैसे स्टोरेज रूम होता है, स्टोरेज गोडाउन होता है, उसमें सामान वगैरह रखते हैं, इसमें वुडन क्रेट्स रखते हैं। वुडन क्रेट्स यानी छोटे छोटे कार्टन्स वगैरह होते हैं ना वुडन, उसकी बात हो रहा है, वुडन लकड़ी की। ठीक है, ईच मेजरिंग उनका भी साइज है, ये देखिए ये गोडाउन आपका 40 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड एंड 15 मीटर हाई है। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिएगा, ये चीज दिया गया है। अब आपको दिया है कि एक वुडन क्रेट, छोटा सा वुडन क्रेट होता है, ये वुडन क्रेट देखिए, ये वुडन क्रेट्स है आपका, इसके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 1.5 मीटर, 1.25, 0.5।